اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبور 121، آج بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے زبور 121 اور اس کی ہم آج چوتھی آیت مقدسہ کو دیکھیں گے۔ زبور نمبر 121، سامز 121 اور ورس نمبر 4 کو ہم دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ کل ہم نے بائبل مقدس میں سے زبور 121 اور اس کی تیسری آیت مقدسہ کو سیکھا تھا، اس کی تشریح کو سیکھا تھا۔ آج ہم زبور 121 اور اس کی چوتھی آیت مقدسہ کو دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ آج پھر سے ہمیں خدا نے اپنی صلیب کے نیچے یسوع نے آنے کا فضل عطا کیا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم ڈیلی ابدی نجات چرچ یوحنا آباد جے بلاک میں ابدی نجات چرچ میں ایوری نائٹ ہم آتے ہیں اور ہم عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر روز شام 7 بجے سے لے کر ہم 8 بجے تک ورشپ میٹنگ کرتے ہیں، جس میں ہم چھوٹا سا سرمن بھی سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اسمال سرمن اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری 1 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے۔ اسی میں ہم ورشپ میں بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، تو پھر اینڈ میں ہم اسمال سا سرمن سنتے ہیں۔ تو آج کے کلام کا ہمارا عنوان ہے، آج کے میسج کا ہمارا ٹائٹل ہے کہ ہمارا خدا سوتا نہیں۔ آج کے کلام کا عنوان ہے ہمارا خدا، میرے ساتھ بولیے گا، ہمارا خدا، ہمارا خدا سوتا نہیں۔ ونس اگین، ہمارا خدا سوتا نہیں۔ یہ ایک سچائی ہے۔ ہمارا خدا، زندہ خدا، الوہیم خدا، یہوہ خدا، ہمارا آسمانی باپ کبھی نہیں سوتا۔ ہمارے خدا کو کبھی نیند نہیں آتی، اسی لیے جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا خدا جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو خدا نے رات بخشی سونے کے لیے، بنی ہوئے انسان کو آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے خدا نے رات بخشی۔ دن خدا نے انسان کو کام کرنے کے لیے دیا، جو ذمہ داریاں ہمیں خدا نے بخشی، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمیں خدا نے انسان کو ہمیں دن بخشا، لیکن رات خدا نے ہمیں سکون کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بخشا۔ عزیزو، آج رات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر خدا نے یہ پروسیس بنایا ہے کہ دنیا کے اندر ہر شخص دن کو کام کرتا ہے، جاگتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، لیکن رات کو ہر شخص چاہے تھوڑی دیر کے لیے ضرور ریسٹ کرتا ہے۔ جن کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں انہیں بھی رات کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پروسیس خدا نے بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کیونکہ خدا جاگتا ہے، خدا کو نیند نہیں آتی۔ ایک اور چیز آج ہم سیکھیں گے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، انسانوں نے بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں، ان تمام چیزوں کو فنکشن کرنے کے لیے چارج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ، آج ہم دیکھتے ہیں مہنگے ترین موبائل آ چکے ہیں اور انہیں بھی فنکشن کرنے کے لیے چارجنگ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے چارج نہیں کریں گے تو لاکھوں کا موبائل بھی وہ فنکشن نہیں کرے گا، بند ہو جائے گا، سٹک ہو جائے گا، رک جائے گا، کام نہیں کرے گا۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمیں باہر سے ہم کچھ ایسے سورس یوز کرتے ہیں، ایٹ کرتے ہیں، فوڈ کھاتے ہیں، اس وقت ہم زندہ رہتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو مشینیں آپریٹ ہوتی ہیں انہیں چلنے کے لیے الیکٹریسٹی کی ضرورت پڑتی ہے، بجلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے، انہیں چمکنے کے لیے، ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے باہر سے وہ چیزیں سورس لیتی ہیں، پھر وہ چیزیں فنکشن کرتی ہیں، کام کرتی ہیں وتھ انسان۔ لیکن ہمارا زندہ خدا
उसके अंदर ऐसी कुव्वत और कुदरत पाई जाती है कि हमारा खुदा फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए खुदा को किसी किस्म का बाहर से सोर्स देने की जरूरत नहीं। मैंने मोबाइल की आपको एग्जांपल दी कि आज लोगों ने महंगे तरीन मोबाइल रखे हुए हैं, वो महंगे तरीन, गाड़ियों से ज्यादा महंगे फोन आ चुके हैं। कुछ ऐसी सस्ती गाड़ियां हैं वो जो उतने पैसों में खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उनसे भी कई दफ़ा ज़्यादा महंगे फ़ोन आ चुके हैं। लेकिन तो भी जितना मर्जी महंगा फ़ोन है, उस फ़ोन को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए उसे बाहर से सोर्स लाए कि उसकी बैटरी चार्ज होती है, उसे एनर्जी लेनी पड़ती है। लेकिन खुदा को काम करने के लिए किसी चीज़ की, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं। खुदा को मुआजिज़ा करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें खुदा की ज़रूरत है, खुदा को किसी की ज़रूरत नहीं। अगर हम इंसान के दिल में ये ख्याल आता है शायद खुदा भी सोता होगा, अब ताकि सोने के बाद खुदा ताज़ा दम हो जाए, खुदा की थकावट उतर जाए। ना खुदा को थकावट होती है, ना खुदा को नींद आती है, ना खुदा सोता है, बल्कि खुदा हमेशा अपने लोगों के लिए जागता है। खुदा की जो शोलाजन आंखें हैं, खूबसूरत जो आइस है, वो ईमानदारों को वॉच करती है, देखती है। शायद आपने कभी सुना हो ऐसी तारीकी की कुव्वतें हैं जिन्हें जान लेने का भी इख्तियार है। ऐसी तारीकी की कुव्वतें हैं जो जान भी ले लेती हैं। कई दफा हम सोचते हैं अब इस जान नहीं ले सकता। अगर अय्यूब की किताब पढ़े तो वहां पर हमें मिलता है कि खुदा का प्लान नहीं था कि अय्यूब के बच्चे मर जाए, लेकिन एक ही दिन में अय्यूब के 7 बेटे और उसकी 3 बेटियां, 10 बच्चे एक ही दिन में उनकी डेथ हो गई। अब इसने मार दिया। आज भी बेशुमार हमारे यंगेस्ट बच्चे जो ठीक तरह से गाड़ी को ड्राइव नहीं करते, जिसकी वजह से सड़क के ऊपर उनकी डेथ हो जाती है। बेशुमार यंगेस्ट बच्चे, बुजुर्ग भी जो नशे के अंदर मर जाते हैं, उनमें खुदा की मर्जी नहीं होती। बेशुमार ऐसे लोग, डिप्रेशन इतना हाई हो जाता है, डिप्रेशन शूट कर जाता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। खुदा की वहां पर मर्जी नहीं है, उसके पीछे इब्लीस का हाथ है। ऐसी तारीकी की कुव्वतें हैं जो जान भी ले लेती हैं इंसान, लेकिन ईमानदारों की वो जान नहीं ले सकती। इस बात को दिल में रखें। ईमानदारों की वो इब्लीसी कुव्वतें जिन्हें जान लेने का भी इख्तियार है, जिन्हें आज हम डेथ स्पिरिट बोलते हैं, वो ईमानदारों की जान नहीं ले सकते, क्योंकि ईमानदारों के लिए खुदा जागता है। खुदा उन पर अपने पाक आंखें लगाए रखता है, खुदा अपने पाक मुहाफ़ज़त वाले हाथ बढ़ाए रखता है। इसलिए ईमानदारों को इब्लीसी कुव्वतें, शैतानी तसीरें, तारीकी के मौकल और हुकूमत वाले, इख्तियार वाले जो इब्लीसी ताकतें और उनके मौकल और असरात है, वो इंसान को छू नहीं सकती, छू ना सकती है, ना छू पाती, क्योंकि वो शख्स यीशु के लहू में डिप हुआ है, यीशु के लहू में छुपा हुआ है। आज हम इस बात को अपने दिल में रखेंगे। अगर हमारा खुदा, हमने वर्ष को देखा, लिखा है, देख इस्राएल का जो मुहाफिज है, जो शख्स, जो हस्ती इंसानों की हिफाजत करती है, जो खुदा इस्राएल का मुहाफिज है, वो लिखा है ना ऊँगेगा ना सोएगा। अगर खुदा ना सोता है ना ऊँगता है, एक सोना होता है, एक होता ऊँगना, ये 2 अल्फाज है। लेकिन अगर खुदा ना ऊँगता है ना सोता है, तो फिर क्यों जो है वो बेशुमार लोग हैं, वो रातों को भी डर जाते हैं, परेशान होते हैं, खौफ की स्पिरिट्स आ जाती हैं, घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान कई दफ़ा झबला होता है, उसकी ज़ुबान मुड़ जाती है, हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसे होता है? इसका मतलब है आपके ऊपर अभी तक बर्रे का लहू नहीं, वो लहू जिसके अंदर जिंदगी पाई जाती है, वो खून जो आज भी जिंदा है और पुकारता है। जरूरत है अज़ीज़ इस बात की कि हम अपने पर यीशु का लहू मांगे, अपने पर जीसस का लहू मांगे। कहीं जीसस तू मुझे अपने लहू से धो, ब्लेस कर, मोर मोर मोर, तू मुझे ब्लेस कर, मेरी लाइफ को ब्लेस कर, मुझे ऐसा बना जैसा तू चाहता है, और मुझे अपने लहू में छुपा ले। अजीजों, आज यीशु के लहू के ताल्लुक से मैं बात करना चाहता हूँ। जीसस का जो ब्लड है, ये हमारी एक सेफ्टी है, हमारी मुहाफ़ज़त है। यीशु का लहू हमें महफूज करता है, हमें सेव करता है। उस वक्त हमें यीशु का लहू सेव करता है जब आप और मैं
हम जीसस के लहू को अपने पर मांगते हैं। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अपनी जान के ऊपर, अपनी रूह के ऊपर कभी भी यीशु का लहू अप्लाई नहीं किया। वो कहते हैं कैसे हो सकता है, प्रूफ करके हमें दे, ये कैसे हो सकता है कि यीशु का लहू मांगने से आ जाता है। वो कहते हैं मैं मांग रहा हूँ यीशु मेरे ऊपर अपना लहू बेद, लेकिन मेरे ऊपर अपना लहू, यीशु का लहू अभी तक आया नहीं है। वो लहू यीशु का जिस्मानी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ जीसस का ब्लड जो कोहे कलवरी के ऊपर बहा, आज भी वो जिंदा है, लेकिन वो हमें जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आता। ये बदन की जो आइज है, जिस्मानी आंखें, ये सिर्फ जिस्म की चीजों को देखती हैं, जिस्मानी चीजों को देखती है। इन आंखों के अंदर इतनी ताकत नहीं, कुव्वत नहीं कि ये रूहानी चीजों को देखे। और रूहानी चीजों को देखने के लिए हमें रूह की आंखों की जरूरत है। जब खुदा के खादम दुआ करते हैं ऑयल के ऊपर और पानी के ऊपर, तो खुदा दिखा रहा होता है पानी, तेल रेड रेड हो जाता है रूहानी आंखों से। यानी कि वो ऑयल और उस पानी के अंदर शिफा देने की कुव्वत और कुदरत आ जाती है। जो शख्स इस फेथ के साथ उस पानी को, तेल को यूज करते हैं, यकीनन उसकी लाइफ के अंदर खुदा मिलकर करता है। आज हमारी बड़ी बाजी यहाँ पर आए, मिसेस सैमुअल, तो वो एक टेस्टिमनी दे रही थी कि पास्टर सर कल आपसे प्रे करवा कर गए, कल उनकी बहुत हालत खराब थी, क्योंकि खुदा ने अपने खादमों को यह खास शिफा का मौजज़ात को तोड़ा दिया हुआ है। तो कल वो टूटे हुए चर्च में आए, खुदा के खादमों ने प्रेयर की, उसके बाद वो 90 ऑयल और वाटर लेकर गए, और वो बाजी ने बताया जैसे आपने दुआ की और फिर हमने हॉली ऑयल यूज़ किया, हॉली ऑयल से खुदा ने हमारे घर को ब्लेस किया, खुदा ने मुझे शिफा दी, मेरी फैमिली को खुदा ने छुआ, और बाजी आज खुश थी। मेरे भाई अरसलान भी यहाँ पर मौजूद थे, और ये एक जिंदा टेस्टिमनी है। हमेशा मैं सिर्फ उस गवाही को शेयर करता हूँ जो एक सच्चाई है, जो सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद है। सच्ची गवाहियाँ जिंदगी को बदलती हैं। जिन गवाहियों के अंदर मसीह की सच्चाई और पाकीज़गी पाई जाती है, आज भी वो लाइफ को चेंज करती है। इसलिए अजीजों, आज से अपने ऊपर यीशु का लहू मांगना शुरू करो। आपका खुदा ना सोता है ना ऊँघता है, आपका जिंदा खुदा, लश्करों का रब यहोवा खुदा हमेशा जागता रहता है। आपको ज़रूरत है आप अपने ऊपर यीशु का लहू मांगो। जब आप सोते हैं, सोने से पहले कहा करिए जीसस, मैं अपने ऊपर, अपनी रूह, अपनी जान, अपने बदन के ऊपर तेरे लहू को मांगती हूँ, मांगता। जब आप बोलेंगे तो आपका लहू, जब यीशु के लहू से आपका लहू जब ढक जाएगा, आपका बदन ढक जाएगा, तो आपको कोई शैतानी कुव्वत छू नहीं सकती, क्योंकि ये प्रोसेस खुदा ने बनाया। जब उसके बेटे यीशु ने कुर्बानी दी, अपने पाक खून को बहाया, तब से लेकर आज तक हमें महफूज यीशु का लहू करता है। लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके ऊपर जीसस का ब्लड होगा, तो वो लहू, चूंकि उसके अंदर जिंदगी पाई जाती है, वो पुकारता है बाप को कि ए बाप मेरी ए बाप, इस बेटे की मदद कर, इस बेटे के ऊपर तेरे बेटे यीशु का लहू लगा हुआ है, इसकी मदद कर। बेटा बाप के दाहिने हाथ बैठे भी शिफायत करते हैं, बाप अपनी बेटी की मदद कर, इस बेटी की मदद कर, इसके ऊपर मेरा लहू लगा है, इसकी मदद कर, ये टूटा हुआ है, इसने अपने ऊपर मेरा लहू मांगा है, इसके ऊपर मेरा लहू आ चुका है, अब तू इसकी हिफाजत कर। यीशु का लहू पुकारता है, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी पाई जाती है। जिंदा शख्स पुकारता है, चलाता है, जैसे हम पुकारती हैं, बोलती हैं, यीशु का लहू भी बोलता है, आपकी शिफायत करता है। आइए आज रात हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और कुछ देर के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। क्या कभी हमने अपने को यीशु का लहू मांगा? अगर नहीं तो आज से आप मांगे, और इस ईमान से मांगे कि मेरा खुदा ना सोता है और मेरा खुदा ना ऊँघता है, बल्कि मेरे लिए हमेशा जागता रहता है। मेरा मुहाफिज सोने का नहीं है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।